Hello champions, welcome to the next lecture on the IIT JAM 2026 solution. Today I will explain you how you can solve the problems related to the sequences. Myself Dr. Harish Garg, I will always provide the free educations with the help of the shortcut tricks. You can follow and subscribe my YouTube channel for more updated videos. Now, the objective of this lecture is we will cover all those questions that are related to the sequences. For example, the first question, again the second question is which one of the following statement is false about the sequence. Third statement is about again the sequence and they are talking about the convergent or not convergent. Fourth question is again about the sequences and it's a multiple choice questions. It may have more than one correct options. All these four questions I will explain you with the help of the 15-second time periods. If you are new to my YouTube videos, you must subscribe my YouTube channels and join my free WhatsApp group to all of you. You have to subscribe it and then scan and join my WhatsApp group. चलिए लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट क्वेश्चंस. सबसे पहले मैं आपको एक रिकॉल कर दे रहा हूं. ओके जब मैंने आपको सीक्वेंसेस पढ़ाया था तो कैसे बताया था आपको. सीक्वेंस का एक ही रूल बताया था मैंने आपको. यू हैव टू फाइंड द लिमिट एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी इफ दिस लिमिट इज माय फाइनाइट एंड यूनिक. यूनिक बहुत जरूरी है बच्चों. फाइन. अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट और यूनिक है then you can say the sequence xn is convergent. फाइन. अदरवाइज अगर लिमिट आपकी फाइनाइट है लेकिन यूनिक नहीं है then you can say xn is divergent. फाइन. यही तो बताया था ना मैंने. तो बस यही कंसेप्ट का यूज करेंगे और हर क्वेश्चन सीक्वेंस को सॉल्व कर देंगे. क्लियर. तो आपका टारगेट क्या है? सिर्फ लिमिट्स को निकालना. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ -1 रेज टू पावर n. तो दो वैल्यूज बनेंगी व्हेन n इज इवन एंड n इज ओड. जैसे n इवन होगा दैट वैल्यू बिकम्स माई 1/n. वेन एवर n इज ओड दैट नंबर इज माई 2 + 1/n. नाउ इफ यू टेक द लिमिट एज n अप्रोचेस इंफिनिटी कितना आंसर आ जाएगा? 0 and 2. दे आर फाइनाइट बट नॉट यूनिक. तो अगर यूनिक नहीं है दैट मीन्स x is my divergent. Fine. So x is convergent wrong. X is convergent wrong. Fine. Now look at the y. If you take the limit of the yn as n approaches infinity, तो ये क्या है आपके पास? as n approaches infinity, that is a form of 1 raised to power infinity. तो क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको? whenever you have the function 1 plus f और ये आपके पास 1 की पावर इंफिनिटी बन जाए then your answer will be e raised to power f into g. फाइन. तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट विल बी 3/2 एंड अगर आप लिमिट निकालोगे दैट विल बी 3/2 विच इज अ यूनिक. फाइन. तो अगर ये यूनिक है दैट मीन्स yn इज माई कन्वर्जेंट. तो यहां पे कह रहा है yn इज नॉट कन्वर्जेंट. सो द राइट आंसर इज b इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. Look at the second one. Again your target is about the sequences. So my target is to check the limit is my finite and unique. सबसे पहले xn की क्या क्या लिमिट्स आएंगी? इट्स इवन एंड ओड. सो इफ n इज माई इवन द आंसर इज 1. इफ n इज ओड आंसर इज माई -1. फाइन. आपको तो एग्जाम में ये नहीं ना लिखोगे, आप तो ये माइंड में भी रख सकते हो आप. देन योर टारगेट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज false statement. Fine. xn -1, xn -1, xn -1, xn -1. So I can found the value of the xn -1. Fine. तो अगर आपका n even है then xn -1 will be 0. अगर xn -1 -1 है then it will be -2 whenever n is my odd and your target is to find the modulus, so that number will be positive. Is it okay? यही होगा. Now which of the following statement is my false? There exists epsilon such that for all m, ये क्या कह रहा है? xn -1 is greater than epsilon. तो इसका मतलब दो केस बनेंगे. अगर n इवन हुआ फाइन और अगर n ओड हुआ देन 2 इज ग्रेटर देन. ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल.
फाइन, तो ये पॉसिबल है इफ यू टेक एप्सिलॉन इज 1, फाइन। और यहां देखिए देयर एग्जिस्ट बोला है, फॉर ऑल तो नहीं कहा ना, तो देयर एग्जिस्ट हो गया आपके पास, फाइन। एंड देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये किस केस के लिए हुआ, अगर मैं सब सीक्वेंस ले लूं, और सब सीक्वेंस ले लूं ऑफ xn-1, तो आपको एप्सिलॉन मिल जाएगा। सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज माई ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन आपको फॉल्स चाहिए। अब आप सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, xn-1 लेस देन एप्सिलॉन, दैट मीन्स 0 लेस देन एप्सिलॉन एंड 2 लेस देन एप्सिलॉन, फाइन। तो अगर मैं एप्सिलॉन 1 ले लूं, ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, या फिर देयर एग्जिस्ट कह रहा है, तो यस यू कैन चूज एप्सिलॉन इज माई 3, फाइन। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट, फाइन। नाउ यू कैन सी देयर एग्जिस्ट, नाउ यहां पे फॉर ऑल बोला है, फाइन। अब थर्ड एंड फोर्थ में फॉर ऑल बोला हुआ है, तो फर्स्ट पहले थर्ड की बात कर लेते हैं। xn-1 is greater than epsilon, that means either 0 is greater than epsilon or 2 is greater than epsilon, but he said for all, fine, that's wrong. If you choose epsilon is my 3, तो ये स्टेटमेंट आपकी false हो गई आपकी, fine. तो that's the right answer because this is the part of the MCQ, फाइन। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। बट वी विल सी फॉर ऑल एप्सिलॉन ईदर 0 इज लेस देन, फाइन, और 2 इज लेस देन एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, फाइन। तो यहाँ पे इसको तो सेटिस्फाइड हो गया ये आपके पास। तो अगर मैं इवन सब सीक्वेंस ले लूँ, फाइन, मीन्स अगर मैं n वो सारे n ले लूँ जो इवन नंबर से आगे हैं आपके पास, इवन नंबर्स वाले, there exists a positive integer n, yes I can choose n is my 6, फाइन, तब आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए ये दोनों ही नहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं आपके पास। अगर मैं n की वैल्यू इवन ले लूं चाहे ओड ले लूं, ये दोनों नहीं सेटिस्फाइड होंगे। सो दैट स्टेटमेंट इज माई ट्रू स्टेटमेंट, फाइन। सो द राइट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। Look at the next one. For each positive integer n, xn and yn, again your target is to find limit n approaches infinity and yn approaches infinity. पहले y की लिमिट ले लेते हैं, as n approaches infinity, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 to infinity cos of t divided by t square. Now clearly say this integration is my improper integration, फाइन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस इज ऑलवेज बी लेस देन 1, फाइन, 1 over t square, and clearly say this 1 by t square is my convergent by using the comparison test, fine, by using the comparison test, because this has a improper integral, fine, this is the improper इंट्वेगल, और इम्प्रॉपर इंट्वेगल में 1 बाई टी की पावर p, वेन एवर p इज ग्रेटर देन 1 इट्स अ कन्वर्जेंट। तो अगर ये आपकी लेस देन है एंड इट इज अ कन्वर्जेंट, दैट मीन्स yn इज माई कन्वर्जेंट सीक्वेंस, फाइन। सो yn इज नॉट कन्वर्जेंट, रॉन्ग, yn इज नॉट कन्वर्जेंट, रॉन्ग। अब बात रही आपके पास फर्स्ट ऑप्शन की। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, व्हाट इज दैट, 1 + 1/2 विच इज माई, ये कौन सी सीरीज है, इट्स ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज, फाइन, ओके। और वी ऑल नोस एचपी सीरीज इज ऑलवेज द डाइवर्जेंट, फाइन, एचपी सीरीज इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। और दूसरा क्या दिया हुआ है, log of n, log n is also divergent, fine, and the difference of the two divergent sequence may be convergent, may be divergent, fine. And we all knows if an and bn both are divergent, fine, such that अगर an is convergent to the plus infinity, bn is again, sorry, an is divergent to the plus infinity, bn is also divergent to the plus infinity, then you can say an minus bn is convergent, फाइन। यही तो रूल होता है आपके पास, क्लियर। लेकिन अगर an आपका प्लस इंफिनिटी को मूव करे, bn आपका माइनस इंफिनिटी को मूव करे, देन इट इज अ डाइवर्जेंट,
क्लियर? तो an माइनस बी एन कन्वर्जेंट है। अब आप देखिए ये जो सीक्वेंस है एच पी, फाइन, दिस इज अ डाइवर्जेंट टू द प्लस इन्फिनिटी, log of n is also divergent to the plus infinity, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इज कन्वर्जेंट। फाइन, सो xn is my convergent, yn is my convergent, so b is the right answer। फाइन, एक और तरीका भी बता दे रहा हूं अगर आपको ये रूल नहीं मालूम था। फाइन, वी ऑल नोस एचपी सीक्वेंस, मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, सीरीज की बात नहीं कर रहा अभी। फाइन, HP that is or you can say 1 plus 1 over 2 up to 1 over n, ये किसको कन्वर्ज करती है आपके पास, इट इज कन्वर्जेंट टू द log of n प्लस एनी नंबर से अल्फा, वेयर अल्फा इज माई फाइनाइट। फाइन, बट मेक श्योर स्टूडेंट्स अगर आप कोई सीरीज इन्फानाइट टाइम्स ले रहे हो, फाइन, दैट इज माई डाइवर्जेंट। फाइन, यहां पे एक फाइनाइट सीरीज है आपके पास 1 over n की। फाइन, सो ये किसको कन्वर्ट करेगी, log of n प्लस फाइनाइट नंबर, तो इससे क्या होगा आपके पास, व्हाट इज द xn, xn कन्वर्जेस टू द अल्फा विच इज माय फाइनाइट एंड यूनिक नंबर। फाइन, तो इसका मतलब क्या हो गया, xn इज माय कन्वर्जेंट, सो दैट मीन्स बोथ आर माय कन्वर्जेंट, b इज द राइट आंसर। ओके, लुक एट द नेक्स्ट वन, which of the following statement is or are true, it means it may be more than one correct options। चलिए, there exists a sequence xn such that xn plus 1 minus xn, ये तो आपका कन्वर्ट करे जीरो को, बट xn डज नॉट कन्वर्ट, दैट मीन्स ये आपके पास क्या हो जाए, डाइवर्जेंट। ऐसे एक एग्जाम्पल ढूंढनी है आपको, वेरी सिंपल। क्या क्या एग्जाम्पल आपको बताई थी मैंने, कांस्टेंट लीजिए, पोलिनोमियल लीजिए, 1 over n लीजिए, लॉगरिथम लीजिए, यही तो बताई थी आपको। फाइन, आपका टारगेट है डाइवर्जेंट की तरफ जाना, जाए तो n डाइवर्जेंट होगा, फाइन, और log ऑफ n डाइवर्जेंट होगा। लेकिन जैसे आप n लोगे तो n प्लस 1 माइनस n नॉट गोज टू द जीरो। फाइन, तो अगर मैं xn की वैल्यू log n ले लूं आपके लिए, देन व्हाट इज xn प्लस 1, xn प्लस 1 माइनस xn, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, log ऑफ 1 plus 1 over n, and clearly say it goes to the zero as n approaches infinity। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, और ये आपके पास क्या है, इट्स अ डाइवर्जेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज माई ट्रू स्टेटमेंट, बट xn डज नॉट कन्वर्स, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। देखिए यहां पे देयर एग्जिस्ट बोला है, फॉर ऑल सीक्वेंस नहीं बोला ना, तो एक सीक्वेंस की एग्जांपल मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। लुक एट द सेकंड केस, there exists, again they said there exists a monotonic sequence, एक मोनोटोनिक सीक्वेंस सोचिए, दैट डज नॉट कन्वर्ज, बट उसकी सीक्वेंस सब सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाए। फाइन, मोनोटोनिक सीक्वेंस का कोई ऐसा रिलेशन जो कन्वर्जेंट के साथ हो, अगर मैं इसको मोनोटोनिक सीक्वेंस या तो बाउंडेड हो सकती है और या फिर अनबाउंडेड हो सकती है, ठीक है जी। फाइन, अगर तो मोनोटोनिक सीक्वेंस भी है और बाउंडेड भी है, तब वो क्या हो जाएगी, इट इज ऑलवेज अ कन्वर्जेंट। फाइन, लेकिन आपको क्या केस चाहिए, दैट डज नॉट कन्वर्ज, इसका मतलब ये वाला केस तो नहीं चाहिए। अगर वो अनबाउंडेड है, दैट मीन्स दैट सीक्वेंस इज माई डाइवर्जेंट। फाइन, इन्हीं में से ले लो एक एग्जाम्पल, कौन सी सीक्वेंस मोनोटोनिक है और अनबाउंडेड है, xn इज इक्वल टू n, ये एक सीक्वेंस ले ली मैंने, विच इज अ मोनोटोनिक, फाइन, विच इज अनबाउंडेड, दैट मीन्स इट्स नॉट कन्वर्जेंट, तो ये होगी, बट इट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, इसकी कोई भी एक सब सीक्वेंस बना लो आप, एनी सब सीक्वेंस n of k, फाइन, दैट इज ऑलवेज माई डाइवर्जेंट। फाइन, तो दैट स्टेटमेंट इज माई फॉल्स स्टेटमेंट। फाइन, मोर ओवर हम इतना भी जानते हैं, अगर कोई सीक्वेंस आपके पास इंफिनिटी को डाइवर्ज हो रही है आपके पास, दैट मीन्स एक्स एन उसकी सब सीक्वेंस कैन नेवर बी कन्वर्जेंट, कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। सो दैट मीन्स द फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए अब थर्ड एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस दैट हैज ए बाउंडेड सब सीक्वेंस,
कौन सा रिजल्ट आपके दिमाग में आता है जब भी कोई बाउंडेड सीक्वेंस की बात करी जाए? यस एनीबडी? दैट इज कॉल्ड एज द बोल्ज़नो फाइन वीटस्ट्रास थ्योरम। तो वो क्या कहती है? every bounded sequence has convergent subsequence। ये तो होता है ना आपके पास। अब आप इस स्टेटमेंट को कंपेयर कर लेते हैं जो आपको थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। व्हाट इज दैट? देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस फाइन दैट हैज ए बाउंडेड सब सीक्वेंस। तो यहां पे बाउंडेड सब सीक्वेंस हो गया, तो इसका मतलब उसकी जो सब सीक्वेंस बनेगी वो आपकी क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट। बट ही सेड बट डज नॉट हैज एनी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स बाय यूजिंग द बोल्ज़नो-वीटस्ट्रास थ्योरम। सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसिल्ड। चलिए फोर्थ ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देयर एग्जिस्ट, फिर से देयर एग्जिस्ट कह रहा है सीक्वेंस xn such that for any positive integer m, so I can choose m is my 1, fine, such that xn has a subsequence, इसकी एक subsequence लेते हैं, has a subsequence convergent to the m is my 1। तो आसान है, एक सीक्वेंस बना लेते हैं अपनी तरफ से, फाइन। तो m 1 होना चाहिए ना, एक में मैं 1 ले लेता हूं पहले, फाइन, एक और ले लेता हूं 1 and 2, फाइन। मतलब सब में एक 1 1 लेते जाओ आप, ठीक है। ये आपकी सीक्वेंस होगी। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है इसके बारे में कुछ नहीं बताया इन्होंने, क्लियर। तो इसकी एक सब सीक्वेंस ले लेते हैं। व्हाट इज द सब सीक्वेंस? एक्सएन के एक सब सीक्वेंस सारे 1 1 1 1 ले लेते हैं। ये एक सबकी सब सीक्वेंस होगी ना, तो ये किसको, इसकी लिमिट कितनी आएगी? यूनिक, विच इज कन्वर्जेंट। सो यस इट कन्वर्जेंट टू दी, बिकॉज यहां देयर एग्जिस्ट बोला ना, फॉर ऑल नहीं बोला। सो दैट स्टेटमेंट इज माई ट्रू स्टेटमेंट। तो यस, ए एंड डी आर दी राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। So you can see that all these 4 questions I had discussed in a very simple manner. फाइन, उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, आपने किस अप्रोच से सॉल्व करा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप प्रीवियस ईयर और पेपर देखना चाहते हो, IIT JEM मैथमेटिक्स के 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। थर्ड इज दिस टूडेज लेक्चर। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। I will upload very soon for you. Happy learning students. Don't forget to like and comment on the video. Thanks for the watching.